Hello everyone, welcome to session. So today we're gonna do concept of ratio part 3. So I hope you guys have seen part 1 and part 2. So we'll be doing today questions regarding income ratio, है ना, income और जो expenditure और saving ratio होता है, and then we'll discuss a concept of partnership, investment partnership. These two things we're gonna do. This के कुछ questions हैं and we'll discuss this concept. So this is gonna be last session for your ratio is concerned. So let's do these questions. So the ratio of the incomes and expenditure of A, B, C is given. So like this is the pattern that I generally use whenever I am solving these type of questions. So try to like तुम भी ऐसे ही कर सकते हो या फिर whatever you are comfortable. But if you don't have any systematic approach, I would recommend to use this type of approach. Fine. So what I do generally, I write these like these are the persons. So A, B, C, and then I will write income this side. So income ratio is given, that is 7, 9, 12. And then I will write expenditure, that ratio is given 8, 9, 15. So represent your data in this manner, it becomes easier to understand the question. Fine. Now what it is saying, one thing, this is in the ratio, so this will be 7x, 9x and 12x, and this you can take y. This is the data. Now if A saves 1/4 of her income, A saves 1/4, तो A की saving कितनी होगी? 7 income minus expenditure, this is the saving, and this saving is 1/4 of her income. So it means 7x minus 8y equals to 1/4 of her income. So this is the income, 1/4 of this, 1/4 of this. Now from this equation we get the relation between x and y. We get the relation between x and y. So this is 21x equals to 32y, x is to y, 32 is to 20. So this is the relation between x and y. Now then the ratio of their savings. So savings का ratio पूछा है. So what we can do, we can take x equal to 32a, एक नया constant करते हैं, plug करते हैं, और y equal to 21a. We can assume this thing. So now this is the thing, 7x, this is the saving of a, and saving of b is 9x minus y, and saving of c is 12x minus 15y. Now just put the values, now just put values of x and y, you will get the answer. I hope this thing is clear. So this is the way, like whenever you are dealing with the questions, sometimes, I'm again saying sometimes it may be helpful कि data ऐसा दिया होगा, you will be able to directly reduce the values of x and y. But most of the time you have to follow this process. This is a simple process, like do this thing, write the names here. जैसे मैंने तुम्हें age वाले questions में बताया था, this is the same type of way you can follow. ठीक है, basically it is a form of representation of data, इससे आसान हो जाता है. So 7x minus y, if we put, तो कैलकुलेशन कर लेना है ना, just calculation do on your own, you will get the ratios. समझ में आ रहा होगा, like you will put here 32a and you will put here 8 into 21a. So this is 7 to 14. चलो कर लेते हैं, 22, 2 to 4, 8 and 16. So this is 168. If any calculation mistake happens, just let me know in the comment section. Fine. अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. लेट्स राइट इट हेयर. 56a, a का आ गया, b का कितना आ जाएगा, 9x माइनस वाई, दैट इज 32a माइनस 21a. तो ये कितना आ जाएगा, 11 है ना, 11 आ जाएगा, तो 99a. फिर बचा इसका 12 इंटू 32a, so this is 12 to 24 and 36, 38, 384, 15y, so y is 21, so 21, so we can do 15, 1, 15 to 30 and 31, 315. ठीक है, बहुत ही लाइक यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशन अपने आप कर लेना. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. कैलकुलेशन अगर मिस्टेक वगैरह कुछ भी होता है, दैट्स यू हैव टू
डू ऑन योर ओन, ठीक है, ये रेशियो आ रहे हैं मेरे। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो। अब फिर से देखो सेम प्रोसेस, एक्स वाई एंड मंथली income ratio is 1:3 and their expenses are in ratio. Now expenses is given 19:40. So what we'll do, x x y y. Now x save this much, x का सेविंग कितना होगा, x माइनस 19y एंड दिस इज लेस देन y, y का सेविंग कितना है 3x माइनस 40y and this is given that x save less than y. So x save, x की ये सेविंग है एंड दिस इज जो गिवन अमाउंट है 18,860, 18,008। इसके कैलकुलेशन तुम लोग खुद करना, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन मिल गई एक्स वाई में एंड इन टोटल देर सेविंग, तो टोटल उनकी सेविंग दी, इसको ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो दिस इज 4x माइनस 59y एंड दिस इज 36020। तो टू इक्वेशन टू अननोन, थोड़ा डिफिकल्ट है डेफिनेटली, लाइक कैलकुलेशन थोड़ा वैसे दिख रहे हैं बट इट इज मैनेजेबल है ना, सॉल्व हो जाएगा। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड वट एवर दे विल बी आस्किंग यू विल बी एबल टू फाइंड। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यूज रख दोगे, यू विल बी गेट द इनकम्स, ये एग्जैक्ट तुम्हें इनकम दे देगा एक्स और वाई की, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन कर लेना इसमें तुम्हें, ये दो इक्वेशन है, दिस द नंबर वन इक्वेशन, दिस द नंबर सेकंड इक्वेशन, टू इक्वेशन टू अननोन, जस्ट सॉल्व दिस। Manoj and Siva, who are colleagues in office, okay, Manoj and Siva are colleagues in an office, have their monthly savings. So monthly savings का ratio दिया हुआ है, okay. Manoj spend 2/3 of his income every month, okay. If the ratio of their monthly income, so ratio of monthly income is given. So I was looking for this data. Income is given and savings is given. So expenditure will be here. Saving is here. So you can write saving here also, then that this part will be added है ना, वो subtract होके expenditure दे देगा, that उससे बहुत ज़्यादा difference नहीं आता। Okay, so this is 3x and 4x and what is this, have their monthly savings in the ratio. So monthly savings का ratio दिया हुआ, monthly savings and Manoj spent 2/3 of his income. Manoj spends 2/3 of his income. तो मनोज की इनकम ये है, इनकम ये है एंड इसका एक्सपेंड कितना कर देता है 2/3, तो बचेगा कितना 1/3, बचेगा 1/3, सो डेट इज एक्स। मनोज का जो बचेगा डेट इज एक्स। so what you can say here that this 2y equals to x ना, 2y equals to x होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अभी करते हैं बट अभी देखो जस्ट 3x 4x इनका इनकम का रेशियो हो गया, सेविंग्स का रेशियो ये दिया हुआ है और ये कह रहा है कि मनोज स्पेंड 2/3 ऑफ हिज इनकम, 2/3 ऑफ हिज इनकम, तो बचेगा कितना। अच्छा रेशियोज मैंने उल्टा लिखे हैं, डेट इज 2:3, नहीं फाइन फाइन फाइन, सेविंग है, ठीक है। तो मनोज स्पेंड 2/3 ऑफ हिज इनकम, तो 2/3 अगर वो एक्सपेंड कर देगा तो बचेगा कितना 1/3 बचेगा, 1/3 बचेगा, तो डेट इज सेविंग ना, जो बचेगा डेट इज सेविंग। तो इट मीन्स 2y इक्वल टू एक्स। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। मनोज की टोटल इनकम 3x है और 2/3 डेट इज 2/3 इतना एक्सपेंस कर देता है, डेट इज 2x। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर जो मनोज का ये है, तो उसकी जो सेविंग होगी कितनी होगी, ये हो गया 2y इक्वल टू एक्स। यहाँ से y और x में रेशियो निकल आएगा, डेट इज 1:2। अब कुछ नहीं करना है, तो मैं y की जगह पे 1 पुट कर दो और x की जगह पे 2 पुट कर दो, सिंपल। इससे हमें निकालना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, तो दिस इज दिस वन। एंड अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर निकलेगा इनकम से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, यही तो इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, दोनों इक्वेशन सेम है। सो व्हाट दिस विल बी 4x माइनस 3y एंड यू नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर निकालना। आई होप समझ में आ गया। 1 और 2 पुट करना है, ठीक है, y की जगह पे 1, बेसिकली पुट हमें क्या करना है,
कंफ्यूजन ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ ए और 2a पुट करना है, ठीक है, ए और 2a। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2a डेट इज 4a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 8 - 3 5 है, तो 4:5 विल बी द आंसर। कैलकुलेशन अगेन चेक कर लेना, बट आई थिंक दिस इज राइट, 4:5 विल बी द आंसर। ओके, आई होप देयर शुड नॉट बी एनी डाउट टिल नाउ। अब देखो एक और चीज़ ऐसे भी कर सकते हो, और चीज़ कर सकते हैं, ये ऐसी कैलकुलेशन नॉर्मल जो अभी तक हमने मेथड यूज़ किए प्रॉपर वैसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखो, और क्या सोच सकते हैं। अब ये एक लाइक बेसिकली इसमें कैलकुलेशन ऐसे हो रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये दिया है 3x और 4x, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज हेयर पॉसिबल बिकॉज कैलकुलेशंस ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। You know this thing 2x and this is x, and you know this ratio, this one, this ratio, this is 2:3 ratio ना, this is 2:3, this is 2:3 ratio। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा, अगर ये x है और ये जो रेशियो है मनोज एंड शिवा डेट इज 2:3, ये सेविंग है ना, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। तो ये बेसिकली हमें इसको y ले लेते हैं, y निकालना है, तो y विल बी 3/2, 3/2 कितना x हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो अब ये यहाँ से ये निकल आएगा जो हमें निकालना है, बेसिकली इसको ले लेते हैं, लेट से एस, लेट से एस, तो एस इक्वल टू 4x माइनस एस इक्वल टू 3/2 एक्स होता है, 4x माइनस 1.5 लिख लेते हैं आसान रखने के लिए, एस एस की वैल्यू आ गई, और डेट इज 0.5, है ना, 2.5, 2.5 0.5 2.5, दोनों चीज़ें सेम है, जस्ट थोड़ा सा लाइक इसमें लग रहा होगा कि थोड़ा सा आसान हो गया 2.5। अब रेशियो अगेन हो गया 2:2.5, कितना हो जाएगा 4 और 5, फिर से वही रेशियो होगा। तो जहाँ पर तुम्हें ये चीज़ डायरेक्टली दिख जाए, है ना, जहाँ पे कैलकुलेशन से दिख रही हो, यू कैन प्रोसीड दिस वे, अदरवाइज एक्स वाई पूरा अज्यूम करके ही अप्रोच करेंगे, ठीक है। 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ हर्स, अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली मैं इसी के लिए ये सब करा रहा था। हर्षा एंड मंदार सैलरीज आर इन द रेशियो 3:5, तो इनकी सैलरीज या इनकी इनकम का रेशियो ये है, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज ऑफ लास्ट ईयर, और ये बेसिकली कंबाइन कैसे करें, है ना, लास्ट ईयर, ये चीज़ मैं बताना चाहूँ। तो ये लास्ट ईयर है, ये लास्ट ईयर की है, एंड द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज दैट लास्ट ईयर। तो अब इसमें इसकी हर्ष की लास्ट ईयर सैलरी, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सेम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इसमें 2:3 का रेशियो है, समझ में आई। इसके मनोज में कितना रेशियो है, मंदार, मंदार में रेशियो 4:5, लास्ट ईयर से और प्रेजेंट। इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो 2:3, 3:x, x इक्वल टू 9/2, तो इसकी लाइक 4.5 लिख सकते हो, और इसकी 5/x इक्वल टू, ये x अलग है और ये x अलग है, ठीक है, 25/4, तो डेट इज 6.25, 6.25। आई होप आई हैव डन कैलकुलेशंस राइट, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, रेशियो से ये 2:3, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अब जो ये वैल्यूज़ हैं डायरेक्टली यू कैन टेक, ये x है और ये x है और ये x है और ये x है, इफ देयर कंबाइंड सैलरी ऑफ द प्रेजेंट ईयर, सो प्रेजेंट ईयर की कंबाइंड सैलरी कितनी हो जाएगी, ये 6.25x। देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, जो मैं करो, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ भी हो जा रहा है, तो थोड़ा पॉज करके जस्ट थिंक ऑन योर सेल्फ, है ना, अपना दिमाग लगाकर सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा। दिस इज द लाइक इजिएस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, मे बी फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट अगर इफ यू पुट एफर्ट्स यू विल बी एबल टू फॉलो, ठीक है। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस थिंग। 10.7x, जस्ट क्वेश्चन आसान है, मैं तुम्हें उन्हें थोड़ा एक सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, नथिंग एल्स। अदरवाइज जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए जो फर्स्ट क्लास में, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ, यू ऑल्सो डोंट नीड टू वॉच देम, इसे देखने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट कैन फॉलो द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट सेशन।
बट आई हैव टेकन फ्यू क्वेश्चन, मैंने सोचा कि करा देते हैं सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइक हाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली बुक में, मॉक्स में, एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो अगर ये समझ लोगे पर्टिकुलर टाइप से तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये टोटल इनकम इतनी होगी एंड दिस इज गिवन तो 10.75 x इक्वल टू 86,000। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं पता नहीं क्या हो जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, मैं कहीं पर x लिख दे रहा हूँ कहीं पर y, तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके थोड़ा लाइक पुट एफर्ट्स, यू विल बी एबल टू फॉलो, ठीक है। एफर्ट लगेंगे लाइक कितना, मे बी, है ना। जैसे मैं यहाँ पर कहीं पर भी कुछ लिख दे रहा हूँ तो यू हैव टू जस्ट यूज पेन एंड पेपर और समझना होगी कहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है। फिर भी अगर तुम्हें डाउट रह जाता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन एग्जाम में डेफिनेटली आई विल यूज कैलकुलेटर, ठीक है। मुझे तो लाइक डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ पर कैलकुलेट करना। 10.75 x, तो इधर हो जाएगा 86, 5 जीरो आ जाएंगे ना, 3 5 जीरो आ जाएगा, 105 86 आना चाहिए। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट सैलरी नॉट एज, ऑफ हर्षा। हर्षा की प्रेजेंट सैलरी मीन्स पॉइंट, अच्छा हमें ये फाइंड करना है। 9 का मल्टीपल है ये, 9 का मल्टीपल नहीं है, 4.5। ट्राई करता हूँ मैं, 6 से अगर करते हैं 30, 45, तो नेक्स्ट जीरो कहाँ पर आएगा, 8 पर आएगा। 8 पे आई थिंक हो जाएगी अगर इवन आंसर, अगर लाइक इंटीजर आंसर होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम में डेफिनेटली यूज द कैलकुलेटर फॉर सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन। आई थिंक हो गया, 60 आ गया ना, 8, हाँ दिस इज फाइन। तो 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 से कितना आ रहा है यहाँ तक, 8,000। सो एक्स इक्वल टू 8,000। कुछ कह रहे हैं, हर्ष की सैलरी पूछ रहा है, हर्षा की सैलरी, दैट इज 4.5 से इंटू कर दो, तो 4.5, 800, सारे कैलकुलेशन में कर रहा हूँ आज, 45। तो अगर इसको करें 2 से कर दें, देखो मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है, ठीक है। मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ, बहुत टाइम लेता हूँ मैं, 90, और ये हो जाएगा 36,000। ओके, तो दीज वर द क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सबसे लाइक थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं ऐसे ही इनकम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मेक श्योर ये कर लेना, और बुक में जितने भी क्वेश्चन हो नाउ यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होंगे, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, है ना, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। तो होता क्या है इसमें, होता क्या है कि लाइक जैसे टू पर्सन होते हैं, पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। तो लाइक देर विल बी ए बी सी, 3 पर्सन, है ना, दे स्टार्टेड देयर सम बिजनेस। तो उसमें क्या होगा कि वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, लेट से ए ने 200 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, बी ने 100 किए और सी ने 300 किए, इतने रुपए इन्वेस्ट किए। और दे जो उनका बिजनेस था, दे दैट रन फॉर 12 मंथ्स, है ना, सबने 12 मंथ्स के लिए। तो ये तुम्हारा कहलाता है, ये 12 मंथ सबने लाइक बराबर इतना इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया और इतने टाइम के लिए किया। तो अब जो लाइक प्रॉफिट आएगा ना बिजनेस से, दैट विल बी डिवाइडेड इन दिस रेशियो। जो प्रॉफिट आएगा इस बिजनेस से, दैट विल बी डिवाइडेड इन दिस रेशियो। तो ये चीज़ अब याद कर लेते हैं, मतलब याद समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। तो दिस इज, इसे बोलते हैं तुम्हारा पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट टाइम। तो बेसिकली जो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, जो एक पर्टिकुलर पर्सन होगा वो किसी बिजनेस में जब इन्वेस्ट करेगा तो उसे प्रॉफिट इस बेसिस पर मिलेगा कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट और कितने टाइम के लिए किया है, कितना इन्वेस्टमेंट और कितने टाइम के लिए किया है। टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, हाउ मच मनी एंड फॉर हाउ मच टाइम, ठीक है। तो
से ले लेते हैं M और T, है ना, M1 T1 M2 T2 M3। तो तुमने कितना अमाउंट और कितने टाइम के लिए किया है, दिस रेशियो में तुम्हारा मनी जो होगा वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो तीन जैसे एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। अब सपोज ए ने 100 इन्वेस्ट किए, बी ने 200 और सी ने 400। और सपोज ए ने किया कि 8 मंथ तक ने अपने रुपए बिजनेस में रखे, उसके बाद अपने रुपए वापस ले लिए। बी ने 6 मंथ तक, सी ने पूरे साल तक इन्वेस्ट रखा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, इस रेशियो मनी, कितना मनी इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए किया। ठीक है, सिंपल। तुम्हें उस पर्सन का देखना है कितना मनी और कितने टाइम के लिए, दैट इज डन। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सम टाइम क्या होगा, कुछ बार क्या होगा कि ये जो पर्सन होगा इनमें से ए बी सी, जैसे लाइक लेट्स से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है और लेट्स से 12 मंथ, लेट्स से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 8 मंथ्स, ऐसा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा। बट अब सपोज एक और कंडीशन आ जाती है कभी कभी, ए इज योर वर्किंग पार्टनर, ए इज वर्किंग पार्टनर, ए जो तुम्हारा है वो काम भी कर रहा है ना, लाइक जो बिजनेस इन्वेस्ट किया, तो ये तुम्हारे आइडियल इन्वेस्टर हैं, मतलब इन्होंने रुपए डाल दिए एंड दे आर नॉट हैंडलिंग एनीथिंग इन द बिजनेस, बिजनेस इज रन बाय पर्सन ए। तो पर्सन जो काम कर रहा है इसको कुछ सैलरी भी मिलेगी ए को, है ना, ए विल हैव। तो अब जैसे क्या होगा, तो बोल दिया जाएगा कि लाइक ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा, सपोज 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो उस 100 रुपीज़ में 20% सैलरी मिल जाएगी ए को, ए विल गेट द 20% सैलरी। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 80, वो डिवाइड होगा इस रेशियो में। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एक तो नॉर्मल है ना, दिस इज नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, जितना मनी और जितने टाइम के लिए, जितना मनी और कितने टाइम के लिए उसके रेशियो में डिवाइड होगा तुम्हारा। दूसरा क्या है कि सम टाइम इन्वेस्टमेंट में हैव ऑल्सो वर्किंग पार्टनर, एक पार्टनर होगा जो वर्क कर रहा होगा, जो लाइक बिजनेस को हैंडल कर रहा होगा, तो उसके लिए उसे सैलरी मिलेगी। तो वो मेंशन होगा कि उसे कितनी सैलरी मिल रही है प्रॉफिट से, है ना, सैलरी कितनी प्रॉफिट से मिल रही है, तो दैट विल बी टेकन आउट और रिमेनिंग अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है। Now let's see few questions of these. So A, B and C invested some amount, A, B, C, 2000, 5000 and 400. So we can like 1000 we can cancel. So I will write 2, 5. So these are the ways to simplify your calculation, है ना। मैं बार बार ये बात करता रहता हूँ कि focus on simplifying your calculation. Don't complicate the things. Instead of 2000 we can write simply 254. There will not be any problem, है ना। So the net profit for the year, so they have invested for 12 months, सबने 12 months या फिर you can write 1 year, 1 year के लिए सबने इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर देखो दे विल हैव इन्वेस्टेड फॉर सेम टाइम, अगर टाइम सेम है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दिस इज द रेशियो। सो यू कैन से दैट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट इटसेल्फ, तो इस रेशियो में डिवाइड होगा। नाउ यू नीड टू फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय एबीसी। तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 अपॉन जस्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट 549 दैट इज 11 एंड टोटल प्रॉफिट वाज दिस मच डिवाइडेड, so this is 11 11, so that is 220, है ना। एंड फॉर बी 5 by 11 into 1 to 1, this is 11 11, that is 550, and you also know that this is just you can multiply 440 हो जाएगा। ठीक है, so this is the simple। Ajay started a firm with a capital of this. After 5 months, Bowman joined. अब देखो ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि कोई बीच में ज्वाइन कर रहा होगा, तो देखो इसको ऐसे हैंडल करते हैं। ए बी सी, देर आर 3 persons, ए बी एंड सी। तो Ajay started again 1000, I will be not writing, I will write just 28. After 5 months, Bowman joined, okay, with the amount 40. So okay,
Chirag also added as a new partner with an individual investment of 56 after 7 months of commencement. If at the end of year, तो पूरे ईयर के लिए बात हो रही है, तो पूरे ईयर के लिए ए था, ए हैज इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ्स, स्टार्टिंग से था। फिर आफ्टर 5 मंथ तो रिमेनिंग कितने 7 मंथ्स बचे, बी 7 मंथ्स के लिए था। और इसने आफ्टर 7 मंथ्स स्टार्टिंग के बाद ज्वाइन किया था, तो सी कितने टाइम के लिए रहा है, 5 मंथ्स के लिए रहा है। ठीक है, दिस इज द रेशियो, इतना टाइम और इतने अमाउंट के लिए। अब थोड़ा कुछ कॉमन, आई थिंक 7 इज कॉमन, वी कैन कैंसिल इट, 7 कैन कैंसिल इट, 28 basically you can cancel it, so 28 7 4 that is 10 and 2 that is 10, again 2 we can cancel, so 6 5 5. This is the ratio. In this ratio profit will be divided. Profit of the firm is this. What is the share of Bowman का share क्या होगा, 5/16, 32,000 है, so that is like 2, so that is basically 10,000, so Bowman will get 10,000. A, B, C enter into a partnership. They invest this amount respectively. At the end of first year, B withdraws some amount, while at the end of second year, C withdraws some amount. Okay. So now these type of question, जो इनका इन्वेस्टमेंट वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना, सम टाइम वे विड्रॉ करते रहेंगे, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम सारे पॉइंट्स पर कैलकुलेट करें उस चीज़ को। देखो कैसे, ए ने स्टार्टिंग में कितना 40 इन्वेस्ट किया, 40K, बी ने 80K से स्टार्ट किया, सी ने 120K से स्टार्ट किया। नाउ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में, तो फर्स्ट ईयर के एंड में बी विड्रॉज 40,000, बी ने, तो फर्स्ट ईयर मतलब 80,000 उसका था, तो स्टार्टिंग यहाँ तक रहा, बट फर्स्ट ईयर के एंड पर 40,000 निकालने, तो उसका अमाउंट कितना बचेगा, 40 बचेगा, 80 से 40 निकालिए, एंड द, और ए ने नहीं विड्रॉ किया ना, तो ए का कांस्टेंट रहेगा, ए का 36 मंथ 3 इयर्स के लिए पूछा है, तो कांस्टेंट रहेगा, इतना ही अमाउंट उसने इन्वेस्ट कर रखा, इतने टाइम के लिए इतना अमाउंट, और बाकी फिर तो विड्रॉ किया नहीं, तो बी ने रिमेनिंग 24 मंथ्स के लिए इतना किया। सी ने क्या किया, सी विड्रॉज 80K एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो सी ने लाइक 24 मंथ्स के लिए तो यही रखा, 24 मंथ्स तक तो उसने कोई चेंज नहीं किया, बट सेकेंड ईयर के एंड पर इतना विड्रॉ कर लिया और लास्ट के 12 मंथ्स में इतना अमाउंट रखा, तो जो फाइनल रेशियो होगा 40 × 36, और अब इसको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से कर देते हैं 24, और बेसिकली 80 × 24 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 40 × 24 हो जाएगा ना, ये 2 इधर कर दूंगा अगर मैं, इसमें क्या करें, 120 कॉमन लेते हैं, 120 × 36, तो दिस इज द रेशियो। अब इसमें जो कॉमन हो वी कैन कैंसिल आउट, तो 40 इजिली वी कैन कैंसिल आउट, एटलीस्ट ये तो हमें 40 दिख रहा है, एंड 6 कैंसिल कर सकते हैं, 6 6 4 6 18 3 4 9, this is the ratio in which their investment will be divided. Okay? Amount invested by P and Q in a business in the ratio 6:5 respectively, and the ratio of their respective profits at the end of 2 year is this much. If P invested for 5 month, अब देखो उल्टा इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कैसे, पी क्यू है ना, इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो, इस रेशियो में इन्वेस्ट किया कितने टाइम के लिए, पी का हमें टाइम नहीं पता है, टी टाइम के लिए नहीं, पी का पता है, पी इन्वेस्टेड फॉर 5 मंथ्स, पी वी नो, पी इज फॉर 5 मंथ, क्यू वी डोंट नो, क्यू का हमें फाइंड करना है, तो डेट इज टी। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट इसी रेशियो में डिवाइड होगा, एंड प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 1:3, तो दिस इज 1, दिस इज 3, टी का वैल्यू निकल आएगा, दैट इज 18 मंथ्स के लिए क्यू ने इन्वेस्ट किया, सिंपल। A started a business with an investment of this much. After P months from start, B joined an investment. अब इसमें बीच बीच में लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है, ये हमने पहले भी एक एग्जांपल किया। तो A started with an investment of 28K. After P month, B joined investment with 36K. ठीक है, after Q month,
फ्रॉम स्टार्ट, ये स्टार्ट से P फ्रॉम स्टार्ट है और Q भी फ्रॉम स्टार्ट है, ठीक है। C joined with an investment of 48K at the end of years। तो बेसिकली अगर 2 ईयर, तो इसने 12 मंथ्स के लिए किया है ना, इसने पूरा किया। he has started a business and let's say this is एक्स वाई कुछ भी ले लेते हैं। एक्स एक्स पी दिया ही ऑलरेडी, पी और क्यू लेते हैं, पी एंड क्यू। और 2 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ना, पी -24 आएगा। तो इसको लेते हैं एक्स वाई, एक्स और ये लेते हैं वाई। ठीक है, नाउ दिस इज गिवन, ये रेशियो दिया हुआ है 8, 9 और 8, प्रॉफिट का रेशियो ये है। तो व्हाट यू कैन डू, लाइक ये इक्वेट कर लो, ये दो रेशियो इक्वेट करोगे। 28 × 12 अपॉन 8 इक्वल्स टू 36 × 9, 12 3 एंड 3 3 एंड और कितना आ जाएगा, ये एक्स 3 यहाँ पर आ जाएगा 7 4 2 4 21/2, 21/2 एक्स की वैल्यू आ गई। एंड इसको इक्वेट कर दो, 48 8 वाई इक्वल्स टू 28 × 12/8, 8 गेट्स कैंसल्ड। सही किया मैंने, बी एंड सी, चलो कोई नहीं, इंटीजर नहीं आएगा कोई बात नहीं। 12 4 वाई का आ गया 7, तो कैलकुलेशन सही है। 12 3 36, जस्ट एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। 28 36 एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ओके दिस इज द प्रॉब्लम ना, 2 ईयर है। ये सॉरी, ये 24 हो गई ना, तो 24 कर, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। तो क्या हुआ, he started a business with this investment, B with this amount, C with this amount, but they didn't join in the start, they start after, B joined after P month है ना, आफ्टर P मंथ, बिजनेस स्टार्ट होने के P मंथ के बाद। Y joins आफ्टर Q मंथ्स, ठीक है। और A हमेशा के लिए था, A was there for 2 ईयर, तो A का इन्वेस्टमेंट जो हुआ दैट इज 20,000 इंटू 24, 28 × 24 हो गया। बाकी इसका हमने लिया एक्स टाइम के लिए, सपोज इसने इन्वेस्ट किया और इसने सपोज वाई टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। एंड दिस इज द प्रॉफिट रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड होगा। नाउ अब सिंपली देखो सॉल्व हो जाएगा, इसको इससे इक्वेट कर देते हैं। 36x9 इक्वल टू 28 × 24, ये मैं कर रहा था और गलती क्या हुई थी कि मैंने 12 मंथ ले लिए थे, बल्कि ये 24 मंथ से 2 ईयर है, ये मिस्टेक। 4 7 8 एक्स आ गया 21। तो अब देखो इसका मतलब समझो, एक्स 21 आया है, ये 21 तुम्हारा क्या है, दिस इज द 21 मंथ की, लाइक बी जो तुम्हारा था 21 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड था। तो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू होगी 3। उसने कितने 3 मंथ के बाद ज्वाइन किया ना, 12, लाइक टोटल जो वर्क था, टोटल जो इन्वेस्ट बिजनेस था डेट वाज फॉर 2 ईयर्स, उसमें बी ने लाइक इन्वेस्टेड टिल 21 मंथ्स, तो मतलब उसने 3 मंथ्स लेटर ज्वाइन किया, ठीक है। सेम इसका ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 48 एंड 8 वाई इक्वल टू 28 24 अपॉन 8, 8 कैंसिल, 24 2 14, वाई आ गया 14। वाई 14 का मतलब क्या है, वाई 14 का मतलब है कि क्यू की वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना। 14 मंथ्स के लिए सी इन्वेस्टेड रहा है, तो उसने कितना लेट स्टार्ट किया होगा, 10 मंथ लेट स्टार्ट किया होगा, तो क्यू की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू, पी प्लस क्यू 10 + 3 दैट इज 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। Two partners invested this in a business, agree that should be divided equally between them, and the remaining profit is to be treated as interest on capital.
if one partner get this more than this, find the total profit made in the business. ओके, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, लेट्स से ए और बी है, ए ने इन्वेस्ट किया 17 के और बी ने इन्वेस्ट किया 13 के, एंड एग्रीज, जो 2/3 है ना, ये 2/3 ही होगा, 66.66 है 2/3, 2/3 शुड बी डिवाइडेड इक्वली एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट, तो जो लाइक सपोज इसमें वही हो गया जो मैंने बताया, लाइक यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा इसमें हो सकता है ये चीज़ मेंशन नहीं की, बट हो सकता है ए जो हो, है ना, वर्किंग हो या फिर कोई अदर कंस्ट्रेन हो, इसकी वजह से प्रॉफिट अब पूरा इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, जो 2/3 है वो प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होगा, ठीक है, 2/3 प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होगा, और जो रिमेनिंग 1/3 है डेट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द इस रेशियो, ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो अब देखो एक वैल्यू अज्यूम करते हैं, प्रॉफिट को अज्यूम करते हैं, ये कितना है इसका सम 30, प्रॉफिट को अज्यूम करते हैं 30x, और 2/3 प्रॉफिट हुआ, नहीं 30 एज्यूम करके नहीं आएगा, 30 ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, शुड बी डिवाइडेड इक्वली एंड द रिमेनिंग, तो बेसिकली 1/3 तो 90 लेते हैं, 90 लेते हैं ना 90, तो उसका 1/3 जो होगा वो 30 आ जाएगा। देखो उसको ऐसे करते हैं, अब ये चीज़ देखो मैं तुम्हें एक चीज़ इससे सीखो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ऐसा नहीं होता कि लाइक फर्स्ट टाइम में तुम परफेक्ट नंबर एज्यूम कर पाओगे, व्हाट आई से कि जब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना, एक नंबर लेके अज्यूम करके स्टार्ट कर दो, बीच में अगर तुम्हें कहीं कैलकुलेशन दिखता है कि लाइक आई कैन ट्विक दिस कैलकुलेशन, तो सॉल्व करना इजियर हो जाएगा, डेट यू कैन डू, ठीक है। सपोज आई हैड स्टार्टेड दिस क्वेश्चन विद 30x, और फिर मुझे लगता है कि बीच में तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो लाइक इंटीजर नहीं रह रही वैल्यू, तो मैं नंबर जो होता है वो मल्टीप्लाई कर लेता पूरी वैल्यूज पर, ठीक है। बाय द वे आई गॉट इट हेयर, दैट इज 90x, तो 90x से देखना सारा इंटीजर रहेगा, तो अज्यूम किया मैंने जो प्रॉफिट है वो 90x है, जो प्रॉफिट आया वो 90x है, ठीक है। इफ वन पार्टनर, ये अभी आते हैं इस पे, वन पार्टनर गेट, ठीक, टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस, तो जो 2/3 है इसका, 2/3 विल बी 60, 2/3 60 होगा, एंड 1/3 विल बी दिस वन, 2/3 इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ए को मिलेगा एक तो 30x अमाउंट मिलेगा, बी को भी एक 30x अमाउंट मिलेगा, ठीक है, ये इक्वली डिवाइड हो रहा है ना, 30x दो में डिवाइड हो जाएगा 30 और जो एक पार्ट बच रहा है 30, ये डिवाइड होगा, इसमें से मिलेगा 17x ए को, इस रेशियो में डिवाइड होगा ना, बी को मिलेगा 13x, फाइन है, आया समझ में। अब ये नंबर मैंने कैसे ज्यूम किया, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, इस रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया था नंबर, ठीक है। अब इसको कितना मिला 47x, तो मिला 43x, और दिया क्या है, इफ वन पार्टनर गेट्स इतना मोर, तो डेट इज कितना 4x, ये दिया हुआ 4x इक्वल टू 432 मोर देन अदर, फाइंड द टोटल प्रॉफिट, सो 4x इतना है, टोटल प्रॉफिट 90x है, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 से लाइक 4 से कैंसिल ही कर लो, 4 1 4 एंड 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, x इतना आ गया, और 90x आंसर होगा 90, तो इंटू 130, दिस इज द टोटल प्रॉफिट, तो 9 से 27 29 11, so this is your answer, 11,970 is the total profit in the business, fine। so these were the like all the concepts of ratio, मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए तुम्हें, डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉसिबल हो सकते हैं, जो तुम्हें बुक्स में मॉक्स में जनरली मिलेंगे। नाउ ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं यू कैन मार्क देम एंड लेटर ऑन ट्राई देम, ठीक है, वो सॉल्व हो जाएंगे। और जितने ये वीडियोस हैं ये तीनों लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोज के, अगर तुम्हें लाइक कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि लाइक पर्टिकुलर दिस स्लाइड नंबर, यू कैन मेंशन द टाइम स्टैम्प ऑल्सो दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बट बिलीव मी दीज आर नॉट, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस, इफ यू जस्ट पुट एफर्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, थोड़ा 2-3 बार वॉच करो, है ना, लाइक वॉच इन स्पीड कम करके देखो उसको, यू विल बी एबल टू फॉलो, but just watching the videos will not help, you have to make your notes, you have to use pen and paper, you have to think, then only you will be able to understand, if you think that you just watch the video
that will be difficult to understand. Okay, so that's it for this thing. Make sure you join the Telegram channel and you subscribe to the channel also, and join the Telegram group as well for discussion of the questions. And that's it. Let's see you in the next session.